نامائن ڈسٹرکٹ ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے کا واقعہ۔ گرفتار قیدیوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ 115 سے زائد قیدی ابھی بھی مفرور ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ جیل کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی۔ 100 سے زائد رینجرز اور سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ ملاقات کی اجازت لیکن آنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ ملیر جیل سے بھاگنے والے 100 سے زائد قیدی پکڑے گئے۔ 115 سے زائد گرفت میں نہ آ سکے۔ قیدیوں کی گرفتاری کے لیے 10 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ہر ٹیم میں 10 سے 12 افسران اور اہلکار شامل ہیں۔ غفلت برتنے پر جیل افسران سمیت 23 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ملیر جیل میں صورتحال معمول پر آ گئی۔ قیدیوں سے ملاقات پر لگائی گئی پابندی اٹھا لی گئی۔ اجازت ملنے کے باوجود قیدیوں کے اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جیل کے اطراف سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کر لیے گئے۔ مرکزی گیٹ پر 100 سے زائد رینجرز اور ایف سی کے جوان تعینات کر دیے گئے۔ ادھر ایک اور قیدی نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی۔ آصف نے ساری صورتحال بھی بتا دی۔ دیوار کو ایک دم گیٹ کھلے ہم بھاگ گئے، یہی مطلب گورنمنٹ کو آوازیں لگا رہے، کوئی نہیں سن لی۔ مین گیٹ سے باہر آئے تھے، کوئی دیواروں سے چڑھ کے چلے گئے تھے۔ خود خود واپسی آئے ہیں، اپنی سزا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ 380 کا کیس ہے، غلطی ہوئی تھی، معذرت چاہتا ہوں۔ میرے کو 10 مہینے تو ہو گئے، مزید ابھی کیس چلے گا، پتہ چلے گا، کیس کے حساب سے جج صاحب دلاتا ہے۔ جیل سے فرار ہونے کے واقعے کی تحقیقات تیز کر دی گئیں۔ قیدیوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فرار قیدیوں پر مقدمہ انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت درج کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین شاذب رضا کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 20۔ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جیل بریک۔ وزیر اعلیٰ کی بنائی گئی کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کمیٹی میں کراچی پولیس چیف اور کمشنر شامل۔ ڈی آئی جی جیل، ڈی آئی جی سپرنٹینڈنٹ جیل اور دیگر کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ کرائم سین یونٹ نے شواہد جمع کر لیے۔ کمیٹی میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوجھا اور کمشنر کراچی شامل ہیں۔ آئی جی جیل، ڈی آئی جی جیل اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ موقع پر موجود افسران اور اہلکاروں کے بھی بیانات ریکارڈ ہوں گے۔ پتہ چلایا جائے گا کہ واقع میں جیل کی کس کس پراپرٹی کو نقصان پہنچا، پولیس اہلکاروں کی رائفلیں کہاں ہیں، ٹاورز میں نفری کیوں نہیں تھی۔ کرائم سین یونٹ نے جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے۔ سب کی فورینسک کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایف سی کے اہلکاروں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قیدیوں کا فرار، سسٹم لاچار، بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ سندھ حکومت نے محکمہ جیل کا قانون تبدیل کر دیا۔ نئے آئی جی جیل کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ترمیمی آرڈیننس کے اجرا تک روک دیا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات نے جاتے جاتے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 23 اہلکار معطل کر دیے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ قیدیوں کا فرار، سسٹم ہوا لاچار، بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ سندھ حکومت کا ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کے بعد بڑا ایکشن۔ سندھ کی جیلوں کا قانون ہی تبدیل۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ پرزنرز اینڈ کریکشنز ترمیمی آرڈیننس 2025 نافذ العمل۔ آرڈیننس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی جیل، ڈی آئی جی جیل خانہ جات کی تقرری کریں گے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، پولیس سروسز اور صوبائی سروسز افسران کی تقرری ممکن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ 21ویں اور 20ویں گریڈ کے افسران کی تقرری کریں گے۔ 18ویں گریڈ کے اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل کی تقرری وزیر جیل خانہ جات کریں گے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی تقرری کا اختیار وزیر جیل خانہ جات کو مل گیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ بھی ایڈمنسٹریٹو پولیس سروس سے مقرر ہوں گے۔ ادھر آئی جی جیل خانہ جات نے کمال کر دیا، جاتے جاتے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا۔ ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کے مقدمے کا مدعی بھی معطل۔ آئی جی جیل کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ آئی جی جیل قاضی نذیر نے 23 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ عاجز جمالی، سٹی 20۔ منگو پیر گلزار آباد کالونی میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ خاتون کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ خاتون کی موت غلط انجیکشن لگنے کے سبب واقع ہوئی۔ اس حوالے سے خاتون کے لواحقین کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ گل میڈیکل سینٹر قصبہ کالونی، وہاں گئے، وہاں ڈاکٹر صاحبہ نے جو ان کو انجیکشن لگایا اور اس کے بعد ان کی طبیعت، جب یہ وہیں بھی تھی ان کی طبیعت خراب، مطلب ان کو فیل ہونا شروع ہوا کہ طبیعت جو ہے مجھے انجیکشن صحیح نہیں لگا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بخار ہے، یہ سیٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گھر آیا، اس طبیعت بگڑتے
उनका पूरा ये जो एक साइड था वन साइड जो थी बिल्कुल सूज गया था। इस बार मवेशी मंडियों में पहली जैसे रौनकें नजर नहीं आ रही। करंगी कॉजवे पर लगी मवेशी मंडी में सन्नाटा पड़ा है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान सब कुछ बहा ले गया। खरीदारों में जोश है, न व्यापारियों के चेहरों पर खुशी। शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान होने लगे। शहरी कहते हैं जो बकरा गुज़श्ता बरस 60,000 रुपए का लिया था, अब उसी वजन के बकरे के 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहां से लाएं इतने पैसे? यही हाल गाय की कीमतों का भी है। गुजरे साल के मुकाबले में हर जानवर की कीमत दुगनी हो चुकी है। पिछले साल के मुताबिक जो है ना इस साल बहुत ज़्यादा मंडी महंगी है। पिछले साल फिर भी खरीदने में आ रहे थे, इस बार तो ये छोटे छोटे से बकरे हैं, तकरीबन इनके 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जो पिछले साल 60,000 रुपये का बकरा था, इस वक्त वो 1 लाख रुपए का मांगे जा रहे हैं। इस वक्त जो है ना बस बहुत मुश्किल होगा कुर्बानी करना जो है ना। अब ये गायें आप देख लें, ये छोटे छोटे से बछड़े 2-2 लाख रुपए के मांग रहे हैं। जो पिछले साल तकरीबन 140 तक का मिल जाता, तो इस वक्त 240, 245 का बकरा है, गाय है। तो इसलिए जो है हर इंसान के लिए भी इस वक्त जो है बहुत मुश्किल हुआ है कुर्बानी करना। एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जोश, तो दूसरी तरफ माशी हालात की तल्ख हकीकत। ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद इज्तिमाई कुर्बानी को ही बेहतर हल समझ रही है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद कुर्बान की तैयारियां तेज, छुरियां तेज कराने के लिए शहरियों का दुकानों पर रश। मुख्तलिफ मकामात पर नई चमकती छुरियों के लिए नए स्टॉल्स भी कायम हो गए। तफसीलात मुबश्शिर हुसैन की रिपोर्ट में। कुर्बान की तैयारियों को फाइनल टच, कसाईयों और शहरियों ने छुरियां तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में तेजी के साथ कसाईयों और शहरियों की नजरें अब तेज धार औजारों पर जम गई हैं। कराची में छुरियां तेज कराने का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से लोगों का रश देख रहे हैं, इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, छुरियां तेज करवा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का शौक गाय की तरफ, गाय लाने में होता है, इसी तरीके से गाय काटने के लिए भी लोग बड़े शौकीन होते हैं। अपनी गाय खुद काटते हैं, तो अपने औजार तरीके से तैयार करवा के हमसे लेके जा रहे हैं। हम इंतहाई कम कीमत के अंदर, मुनासिब रेट्स के अंदर लोगों की चीज़ें तैयार करके दे रहे हैं, जो भी औजार वगैरह है। महंगाई के दौर में जहां हर चीज की कीमत आसमान से बात कर रही है, वहीं छुरी तेज करवाने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अभी हमने छुरियाँ बनवाई हैं, चापड़ बनवाया, माशाल्लाह जो है सही काम किया उन्होंने, बेहतरीन अच्छा काम किया। पैसे की माशाल्लाह मुनासिब पैसे की उन्होंने। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान करीब आते ही औजारों को तेज कराने के लिए रश लग जाता है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर छुरी की धार के लिए 30 रुपए से 80 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर लगे स्टॉल्स पर नई छुरियां, भुगते और मुड्डी की फरोख में भी तेजी आ गई है। कैमरामैन शरियार अली के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। ईद कुर्बान पर जानवरों की सजावट एक अहम रिवायत। शहरी अपने जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ सजावटी अशिया खरीद रहे हैं, जिनमें रंगीन मालाएं, घुंघरू, चिमचमाती सीटियां और दीगर लवाजमात शामिल हैं। ये अशिया जानवरों की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तफसीलात मुबश्शिर हुसैन की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की सजावटी अशिया का कारोबार भी चमक उठा। शहर भर में सजावटी अशिया की दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कारीगर भी आराइशी अशिया बनाने में मसरूफ हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, जिस तरीके से लोग जानवर खरीद रहे हैं, इसी तरीके से उसके बनाव और सजावट के लिए जो ना हमारे पास आते हैं, और जो ना हार और श्रृंगार ले जाते हैं, और जो ना पाँव के लिए चंचन ले जाते हैं, और जो उनको पसंद आता है, जो बकरा, ऊँट, गाय के लिए जो हमारे पास होता है, वो उनको देते हैं हम। शहर में मुख्तलिफ दुकानों पर रंगीन मालाएं, घुंघरू, चमचमाती सीटियां और दीगर लवाजमात दस्तयाब हैं। इस तरीके से लोग जानवर खरीदते हैं, जज्बे से, शौक से, उसी तरीके से सजाते भी हैं उसको। और मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर कराची वाले जो लोग हैं, ज़्यादा शौकीन है इस चीज़ के, जानवर खूबसूरत खरीदने के, उसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं सजाने के लिए। ईद कुर्बान की तैयारियां कराची में उरूज पर हैं। शहरी अपनी कुर्बानी के जानवरों को सजाने और संवारने में मसरूफ, जबकि सजावटी अशिया की खरीदारी में भी तेजी देखने को मिल रही है और यह सिलसिला ईद की रात तक जारी रहता है। मुल्क में गधों की तादाद में मजीद इजाफा। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। भैंसों, भेड़ों, बकरियों, ऊँटों की तादाद में भी इजाफा। मुल्क में गधों की तादाद में मजीद इजाफा। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 से बढ़ गई।
गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000 का इजाफा हुआ। भैंसों की तादाद 4,63,10,000 से बढ़कर 4,76,88,000 हो गई। एक साल में भेड़ों की तादाद में 3,88,000 का इजाफा। भेड़ों की तादाद 3,27,31,000 से बढ़कर 3,31,19,000 हो गई। बकरियों की तादाद 23,58,000 का इजाफा हुआ। बकरियों की तादाद 8,70,35,000 से बढ़कर 8,93,93,000 हो गई। मुल्क में ऊँटों की तादाद में 14,000 का इजाफा हुआ। ऊँटों की तादाद में 11,63,000 से बढ़कर 11,77,000 हो गई। घोड़ों की तादाद में 1,000, खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा हुआ। घोड़ों की तादाद 3,83,000 और खच्चरों की तादाद 2,27,000 हो गई। कराची से मुनशियात फरोशों का सफाया, मेयर कराची का इनकलाबी इकदाम। KMC नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए बहाली सेंटर कायम करेगी। मुर्तज़ा वहाब का लेप्रोसी अस्पताल का दौरा, कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाली सेंटर बनाना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी और NGOs ताउन करेंगी। आपको बताएं, कराची से मुनशियात फरोशों का सफाया, मेयर कराची का इनकलाबी इकदाम। KMC नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए बहाली सेंटर कायम करेगी। मुर्तज़ा वहाब का लेप्रोसी अस्पताल का दौरा, कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाली सेंटर बनाना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी और NGOs ताउन करेंगी। शहर को गुटखा मावा की लानत से ताहाल बचाया ना जा सका। मुनज़्ज़म नेटवर्क इस वक्त भी शहर में फाल है। कराची रेंज स्पेशल ब्रांच की 8 कैटेगरी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। मजीद सलमान सलीम की इस रिपोर्ट में गुटखे मावे की फरोख्त पर जीरो टॉलरेंस, मुलव्विस अनासिर के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। शहर में गुटखा मावे का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। IG सिंध का शहर को गुटखे से पाक करने का ख्वाब ताहाल पूरा ना हो सका। गुटखे मावे का मुनज़्ज़म नेटवर्क शहर में अब भी फाल है। कराची रेंज स्पेशल ब्रांच की एक कैटेगरी की इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। IG सिंध की टास्क फोर्स एक्टिव होने के बावजूद दर्जनों अफराद गुटखा मावा फरोख्त करने में मुलव्विस हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कराची भर के तमाम गुटखा मावा के कारोबार का भांडा फोड़ दिया गया। कराची के तमाम इजला में गुटखे मावे के मुनज़्ज़म नेटवर्क फाल हो चुके हैं। तमाम इजला की तफसीलात स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में वाज़ेह है। कमोबेश पूरे शहर में एक कैटेगरी के 192 मुल्जिमान गुटखे का बड़ा कारोबार कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पे गुटखे के 52 बड़े कारखाने मौजूद हैं जो शहर भर में गुटखा सप्लाई करते हैं। ए कैटेगरी के अलावा B और C कैटेगरी की लिस्टें भी तैयार की जा चुकी हैं। टास्क फोर्स की कार्रवाइयों के बाद भी शहर में गुटखे मावे का खात्मा नहीं हो सका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत सिंध को अल्टीमेटम दे दिया। मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि हुकूमत ने गाड़ियों के नुकसानात का अजाला और जाँ बहक ड्राइवर्स के लवाहिकीन को इमदाद का वादा पूरा न किया तो ईद के बाद मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे में घर के झगड़े में भी सड़क ब्लॉक की जाती है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात, शहीद ड्राइवर्स के लवाहिकीन को 50 लाख इमदाद का ऐलान, वादा वफा ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने ईद के बाद एहतजाज की धमकी दे दी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान बोले, सिंध हुकूमत ने जांबाहक 3 ड्राइवर्स के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए फी कस इमदाद देने का ऐलान किया। अगर हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई तो ईद के बाद मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। 3 ड्राइवर जो जाम बहक हुए थे उनके एक ड्राइवर के लिए 50-50 लाख उन्होंने उसकी कंपनसेशन का अनाउंस किया। और ईद के बाद हम ये सोच रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो हम मुल्क की सतह पे एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा कि सड़कों की बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान होता है। इन्होंने मुतालबा किया कि रास्ते बंद करने की रवायत अब खत्म होनी चाहिए। हमें मजबूर किया है, जब हुकूमत हमें सीरियस नहीं लेगी तो हम इस तरह से बड़ा फैसला करेंगे। स्ट्राइक के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों का जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात करे, बसूरत दीगर एहतजाज की राह इख्तियार की जाएगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ काविश मेमन, सिटी 20।
महकमा स्कूल तालीम में मजीद 15 अस्ताज़ा और दीगर स्टाफ की नई भर्तियों का इंकशाफ। महकमा स्कूल तालीम और दीगर इदारों के अफसरान महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। कल अफसरान को तलब कर लिया गया। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने MS सर्विसेज अस्पताल कराची, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर दादू और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर दादू को कल 11:30 बजे एंटी करप्शन ऑफिस में बुलाया गया है। दादू जिला में 15 असातिज़ा और दीगर स्टाफ की जाली भर्तियां की गईं, जिनमें सनिया अब्दुल सत्तार, गुलाम मुस्तफ़ा, मारिया शाजिया, सलमा जमाली, मोहम्मद असलम, रहमान अली मुल्ला, जुबैदा रहमान, शफीक, रेहाना परवीन और दीगर शामिल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर मुजफ्फर अली, नायब कासिद मोहम्मद अमीन, अमानुल्लाह और जूनियर क्लर्क अदनान अहमद लाशारी की भी जाली भर्ती की गई। नेगलेरिया से एक और शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। 23 साला नौजवान में 28 मई को अलामात जाहिर हुई और रंगी टाउन का रिहायशी निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। रवा साल नेगलेरिया से अमवात की तादाद 2 हो गई। तिबी माहिरीन का पानी के टैंकों में क्लोरीन की मिकदार बढ़ाने का मशवरा।